الدین الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی اور بڑائی صلی اللہ عز و جل کی الہی مصیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بے شبہ درود و سلام و صلوات مبارکہ اور خلق جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 3 ذی الحجہ 1441 کے مطابق 24 جولائی سن 2020 عیسوی کے خطبہ جمعہ جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ معلومات لے کر کے آیا ہوں. قربانی کے احکام، قربانی کے آداب، قربانی کیا ہے، قربانی کی حقیقت کیا ہے، قرآن اور حدیث میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موسم کے حساب سے، چونکہ یہ اس عشرے کا آخری جمعہ ہوگا اور اگلا جمعہ انشاءاللہ تبارک و تعالی عید الاضحیٰ کی نماز کا ہوگا انشاءاللہ تبارک. اس مناسبت سے قربانی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور قربانی کیسے ہوتی ہے اور کیا کیا چیزیں اس کے اندر ضروری ہیں، اس کے احکام اور آداب کیا ہیں، آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اے مسلمان سنیے، نقطہ درس قرآنی میں ہے. اے مسلمان سنیے، نقطہ درس قرآنی میں ہے. عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے. قربانی عزیزان گرامی ہر قوم کے اندر، ہر مذہب، ہر دین، ہر ملت کے اندر، ہر دور کے اندر پائی گئی. یہاں تک کہ مختلف شکلوں اور صورتوں میں لوگ مختلف انداز میں جنہیں وہ محبوب سمجھتے ہیں، جنہیں وہ پیارا سمجھتے ہیں، ان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. لوگ اپنے وطن، سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، جانوں کی قربانیاں پیش کرتے ہیں، مالوں کی قربانیاں پیش کرتے ہیں. الغرض ہر دھرم اور ہر ملت کے اندر بھی مختلف انداز میں، مختلف شکل و صورتوں میں یہ قربانیاں موجود تھیں. اور یہی چیز اسلام کے اندر، قرآن مجید کے اندر بھی اسلام ایک ایسا دین ہے جسے اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لوگوں کے لیے نازل فرمایا کہ اس کائنات میں جو لوگ بستے ہیں جیسے وہ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ نے انہیں آگ دیا ہے، پانی دیا ہے، ہوا دیا ہے، زمین دیا ہے، آسمان دیا ہے، سورج دیا ہے، چاند دیا ہے، ان کا اپنا ڈھانچہ اللہ نے بنایا ہے. اسی طرح اسی اللہ نے اسلام بھی ان کو دیا ہے کہ اس کے سواستھ کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کی اچھائی کے لیے جو دوا بہتر ہوگی زندگی کے اندر اور مرنے کے بعد بھی، جو چیز سے سوٹیبل ہوگی، جو چیز کے لیے پابند ہوگی، جو اس انسان کے لیے فائدہ مند ہوگی، جیسے زمین فائدہ مند ہے، آسمان فائدہ مند ہے، سورج فائدہ مند ہے، آگ فائدہ مند ہے، ہوا اور پانی جس طرح سے اس کے لیے فائدہ مند ہے، اسی طرح اللہ نے اسلام بھی بنا کر کے دیا ہے کہ یہ اسلام اس کے لیے فائدہ مند ہے. اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اگر کوئی اختیار کرے گا، کوئی مذہب اختیار کرے گا، کوئی دین اختیار کرے گا، کوئی ملت اختیار کرے گا، اپنا منمانی، اپنا بنایا ہوا کوئی دھرم مانے گا، اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کو منہ کے اوپر مار دیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. ایسا جسم اٹھا کے جنت میں نہیں بلکہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، کیونکہ یہ وائرس کا شکار ہے، کیونکہ اس کے اندر جراثیم ہے، کیونکہ یہ اس دوا سے یا اس دین کے اوپر موجود نہیں تھا
जिस दीन को अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर किया था, उसके लिए बनाया था, और वो दीन इस्लाम था। इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम, अल्लाह के नजदीक बेहतरीन दीन इस्लाम ही है। तो अज़ीज़ान गिरामी, कुरान करीम में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुर्बानी का जिक्र फरमाया है। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसिकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। अल्लाह ने फरमाया, हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी मुकर्रर कर दी। हर उम्मत के कुर्बानी, अभी मैं बता कुर्बानी है क्या चीज, कुर्बानी कहते किसको है, कुर्बानी मुकर्रर फरमानी ताकि वो अल्लाह का नाम ले उन जानवरों पर जो हमने उनको अता की थी। इस आयत करीमा से पता चलता है कि कुर्बानी जो इस्लाम के अंदर है वो हकीकत में किसकी कुर्बानी है, जानवरों की कुर्बानी है। वो जानवर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमा दिए कि कौन कौन से जानवरों की कुर्बानी होगी। कुरान मजीद में कुर्बानी के लिए तीन तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। एक तो है नुसुक, लफ्ज़ नुसुक भी इस्तेमाल हुआ है कुर्बानी के लिए, नहर भी इस्तेमाल हुआ है कुर्बानी के लिए। इसी तरह से कुर्बानी का खुद लफ्ज कुर्बान भी कुरान करीम के अंदर वारिद हुआ। तो ये तीन तरह के अल्फाज आए हुए हैं। लफ्ज नुसुक ये मुख्तलिफ माने में कुरान करीम में कई जगहों पर आया हुआ है, मुख्तलिफ माने में, कहीं इबादत के माने में, कहीं इताअत के माने में, कहीं कुर्बानी के लिए। सूरह हज आयत नंबर 34 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, कुल्ली उम्मतिन जअलना मनसकन, हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी मुकर्रर फरमा दी। यहाँ मनसक का मतलब कुर्बानी है। आप कहेंगे ऐसा कैसे? इसलिए कि आगे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मिन बहीमतिल अनआम, भाई चौपानों की जो अल्लाह ने इज्जत दी, तो चौपाए का जिक्र ये बताता है कि यहाँ मनसक का मतलब कुर्बानी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी मुकर्रर फरमा दी है। इसी तरह से दूसरा लफ्ज़ कुर्बानी के लिए कुरान मजीद के अंदर नहर का आया है। सूरह अल कौसर आते हैं, इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने ए नबी आपको कौसर अता फरमाया है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, तो ए नबी आप अल्लाह के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। वनहर, नहर का लफ्ज़ है कुर्बानी कीजिए। तो ये दूसरा। और तीसरी के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुर्बानी के लिए इस्तेमाल फरमाया कि कुर्बानी का लफ्ज़ ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्तेमाल फरमाया है, जिसके सूरह माइदा अंदर आयत नंबर 27 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम और उनके दोनों बेटों का जहां जिक्र फरमाया, हाबिल और काबिल का, कि काबिल झगड़ा हुआ तो काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। हाबिल और काबिल में जरा कंफ्यूजन हो जाते हैं लोग कि किसने किसी को कत्ल किया। तो ये नुक्ता याद रखिए, जिसके नाम में काफ है वो कातिल है, जिसके नाम में काफ है वही कातिल है। काबिल ने कत्ल किया था हाबिल को, और वो आगे लंबा चौड़ा है, आपको मालूम होना चाहिए। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको जिक्र फरमाया, वतलु अलैहिम नबअ इब्न आदम बिल हक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फतुक़ब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आखर। कि ए नबी आप जो है लोगों को आदम के दोनों बेटों का ये सच्चा वाकया बताइए कि जब दोनों ने कुर्बानी की तो उनमें से एक की कुर्बानी कबूल हुई और दूसरे की कबूल न हुई। तो जिसकी कबूल न हुई उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। वो लंबा वाकया है। तो इस तरह तीन अल्फाज, तीन तरह के कुरान करीम में आए। उर्दू जुबान के अंदर हम कुर्बानी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर। इस्लामी इस्तिलाह में कुर्बानी का एक खास मफ़हूम है, जिसका तज़किरा इमाम राग़िब अस्फ़हानी जो मुफ़रदातुल कुरान के मुसन्निफ हैं और अज़ीम इमाम हैं, उन्होंने फरमाया कि कुर्बानी हर उस चीज को कहा जाता है जिसके जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जाए, चाहे वो जानवर को ज़िबह करना हो, माल हो, गल्ला हो, यानी सदका हो, खैरात हो, जिस जरिए से भी अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जाए उसको कुर्बानी करते हैं। चुनांचे उर्फ़ आम में कुर्बानी का लफ्ज़ जो है ये जानवर की कुर्बानी के लिए बोला जाता है। आमतौर पर कुर्बानी का लफ्ज़ जो कुरान हकीम के मुताबिक किसी हलाल जानवर को अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की नीयत से ज़बह करना यह कुर्बानी कहलाता है। किसी हलाल जानवर को अल्लाह की कुर्ब हासिल करने के लिए ज़बह करना क्या कहलाता है? इसी को कुर्बानी कहा जाता है। और आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से ही कुर्बानी का तज़किरा मौजूद है। जैसा कि आपने अभी आपको पता लगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों ने कुर्बानी पेश की। तो गोया कि जब से आदम अलैहिस्सलाम इस्लाम लेके आए, इब्तिदाए इस्लाम से लेकर क़यामत तक ये कुर्बानी का सिलसिला जारी और सारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और कुरान मजीद के मुताबिक जो अंबिया अलैहिस्सलाम को भी कुर्बानी देने का हुक्म दिया था,
उनको भी कुर्बानी देना पड़ती थी। अलबत्ता यह है कि उनके कुर्बानी के कबूल होने की पहचान जो थी, ये भी एक तरह से हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे रब्बुल आलमीन की रहमुर राहिमीनी है, उसकी रहमत है कि उसने यहाँ किसी के कुर्बानी के कबूल और नाकबूल होने को वाज़ेह नहीं फरमाया है, वरना हम लोग कितने यही काफिर और मोमिन का फर्क मालूम हो जाता। लेकिन अल्लाह का रहम है कि कम से कम क़यामत के दिन तमाम सबका राज खुलेगा, कौन असल में मोमिन था, कौन मुनाफिक था, कौन काफिर था। हर कलमा पढ़ने वाला अपने आप को मोमिन मुसलमान जरूर कहता है अलमुहिम, लेकिन ये पिछली उम्मतों में ये जरूर था कि वहां फौरन वाज़ेह हो जाता था कि जब भी वो कुर्बानी देते थे अल्लाह तबारक व तआला आसमान से आग नाजिल फरमाता था और वो आग जिसकी कुर्बानी को खा जाती थी, ये समझो वो मोमिन था, उसकी कुर्बानी कबूल थी, और जिसकी कुर्बानी कबूल जिसकी आग नहीं खाती थी उसकी कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल नहीं होती थी। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुसूसियत है। जब मदीना मुनव्वरा आप तशरीफ लाए तो वहां के यहूदियों को जो मुकीम थे मदीने के अंदर, उनको दावत दी इस्लाम की। तो सूरह आल इमरान के 183 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमाता है, लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह अहिदा इलैना अल्ला नु'मिना रसूलिन हत्ता यातीना बिक़ुरबानिन तअकुलुहु अन्नार। यहूदियों ने नबी को जवाब दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब उन्होंने दावत पेश की इस्लाम की, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने हमसे ये तय कर लिया है, ये वादा लिया है कि हम किसी रसूल पर ईमान ना लाएं उस वक्त तक ईमान ना लाएं जब तक कि वो कुर्बानी पेश करें और आग आकर के वो कुर्बानी ना खा ले। हालांकि यहूदियों की धांधली थी, खबासत थी उनकी, समझ रहे हैं। अल्लाह ने हर उम्मत के लिए कुर्बानी मुकर्रर जरूर फरमाई, लेकिन तुम्हारे कहने तुम जो ये कह रहे हो कि वादा किया अल्लाह ने, क्यों किसी से किया है जो बेईमान नहीं किया। अलमुहिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अल्लाह का ये रहम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खास इनाम हुआ कि कुर्बानी का गोश्त उनके लिए अल्लाह ताला ने हलाल कर दिया। उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मोहम्मदिया यानी हम सबके लिए अल्लाह ने हलाल कर दिया है। लेकिन साथ ही साथ ये भी वज़ाहत फरमा दी है कि कुर्बानी का मकसद क्या है, कुर्बानी का असल हदफ और टारगेट और फलसफा क्या है। कुर्बानी का मकसद गोश्त खाना नहीं है, कुर्बानी का मकसद चमड़ा हासिल करना नहीं है, बल्कि कुर्बानी ये अल्लाह का हुक्म है, शरई हुक्म है और सुन्नत इब्राहिमी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे किराम ने पूछा, मा हिया अल्लाह या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ये कुर्बानियां क्या है? और हादी सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है, इसके रोए के बराबर अल्लाह तुम्हें नेकियां अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। चुनांचे अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, ला यनालुल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह को न इसका खून पहुंचता है, न इसका लुहुम यानी न इसका गोश्त पहुंचता है, बल्कि अल्लाह को जो चीज पहुंचती है वो क्या है? तुम्हारे दिल का तक़वा है। रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो, सुमाना ना हो, बड़े बड़े जानवर कहते 1 लाख के 3 करोड़ के, पाकिस्तान में भी वह वीडियो चल रही है, 3 करोड़ का बैल पहाड़ की तरह माशाअल्लाह खड़ा हुआ है, इतना बड़ा बैल कैसे पाला होगा? बहरहाल अल्लाह पैदा करने वाला है, तो अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई, लेकिन इसमें रियाकारी नहीं हो, दिखावा ना हो कि हम इतने बड़े जानवर है, बाकायदे उसको अजीब गरीब, बल्कि ऐसी भी धांधलियां चल रही है। आम बकरों के ऊपर भेड़ों की खाल चढ़ाकर बेच रहे लोग, धोखा, इसमें भी धोखा दे। अमाम वल्ला बकरा, चमड़े पता नहीं कैसे कैसे सील के बालों में उसको दुम्बा बना, जिनको दुम्बा पसंद है वो दुम्बे खरीदते बेचारे, तो आम बकरे पर दुम्बे की खाल पता नहीं कैसे सिलूर करके 5 कीटों के अंदर सप्लाई किया हुआ। यानी यहाँ भी फराज अवाम जब ये धोखाधड़ी करती है, अवाम तो हुक्मरान का तो अल्लाह ही मालिक है, तो सबसे पहली गलती अवाम की है। अवाम दगाबाज है, अवाम झूठे हैं, अवाम मक्कार है, अवाम चोरी करते हैं, अवाम दगा देते हैं, अवाम लोगों से फ्रॉड करते हैं, और इन अवाम में से चुन करके हुक्मरान जाते हैं, तो वो क्या करेंगे? ये 10 का मारता है, वो 10 करोड़ का मारता है, तो फर्क क्या है? इसलिए हमें चाहिए कि हमारा माशरा, हमारा समाज बाकायदे ईमानदार हो। हम जब ईमानदार होंगे, नीचे से जब तामीर शुरू होगी, नीचे से जब इस्लाह होगी, तो ऊपर जाकर के लोग कहते हैं नहीं वहां कोई ईमानदार की चिड़िया लाके बिठा दो सब सही हो जाए, कुछ नहीं सही कोई होता है। अवाम फ्रॉड करती है तो हुक्मरान क्या करेगा? वो देता है 10 लाख, अवाम तक पहुंचते वो 10 रुपए या 10 पैसे भी नहीं पहुंचता, चोरी कर लेते हैं, बीच में खा लेते हैं, तो हुक्मरानों की क्या गलती? तो कल गलत कहने का मतलब यह है, सोचने का ये भी एक नजरिया है। बेहद तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ भी अल्लाह की इबादतों में भी लोग फ्रॉड कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं लोगों को, अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। तो असल चीज क्या है? दिल का तकवा है। अल्लाह तुम्हारे जानवर को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे गोश्त को लालिक पहुंचता है, तुम खुद खाते हो, है कि नहीं? तो कुर्बानी का मकसद गोश्त खोरी नहीं है, कुर्बानी का मकसद सुन्नत इब्राहिमी
पर अमल करते हुए खालिस अल्लाह तबारक व तआला के लिए तकर्रुब हासिल करना और अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो है नेकी का तलबगार होना। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा हजरत सैयदना इब्राहीम और उनके साहबजादे का वाक़या सुनो। फलम्मा बलगा मअहु सअया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामि अन्नी अज़बहुका फ़न्ज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तु'मर या अबति फ़अल मा तु'मर सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अल्लाहु अकबर। जब इब्राहिम का बेटा इस्माइल दौड़ने के लायक हो गया, दौड़ता हुआ दौड़ने लगा, चलने लगा, तो बाप ने अपने बेटे से कहा प्यारे बेटे, असल कहते उनके कामों में मददगार बन गया, यानी बाप का हाथ बटाने लगा कारोबार में। बड़े हो गए इब्राहिम इस्माइल, कोई छोटे नन्हे मुन्ने नहीं थे, बोलने चालने वाले बाप क्या कहते हैं साथ काम बटाने वाले हो गए। तो इब्राहिम ने एक दिन अपने बेटे से कहा मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे अपने हाथों से ज़ब्ह कर रहा हूँ मैं अपने हाथों से। तो बेटे तेरी क्या राय है? अल्लाह, ये इब्राहिम कितनी आजमाइशों से गुजरे हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, इनकी हयात मुबारक की सीरत मुबारक का मुताला करे, रूठते खड़े हो जाते हैं। आंखों से गुजरे, घर से निकाले गए, क्या क्या नहीं, इसी तौहीद की बदौलत उन्होंने अज़ियतें बर्दाश्त की। अब बुढ़ापे का सहारा वो बेटा जो अभी दौड़ने लायक हुआ है, बाप के हाथों को बता रहा है कामों में। अल्लाह वहाँ भी आजमाइश है। क्या राय है तेरी बेटा? मैं तुझे अपने हाथों से ख्वाब में देखा हूँ ज़ब्ह कर रहा। सादतमंद बेटे ने गर्दन झुका ली और कहा या अबति फ़अल मा तु'मर या अबति फ़अल मा तु'मर सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब्बा हुजूर, आपको जो आपके रब ने, आपके अल्लाह ने हुक्म दिया है, आप कर गुजरिए। सतजदुनी, मुझे आप सब्र करने वाला नहीं, रोने धोने वाला नहीं। बाप ने भी बेटे को देखा होगा, बेटे ने भी बाप को पहचाना, बाप की शफकत मोहब्बत। और ये कौन सा बेटा था? ये वही बेटा था जिसे गोद के अंदर, उसकी माँ की गोद के अंदर बाप ने गैर सीज़रा उसी मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर एक छागल पानी और एक टोकरी खजूर देकर के छोड़ के गया था। आज ऐसी औलाद होती तो वही माँ अपने औलाद को अपने बाप के खिलाफ न जाने क्या क्या कर करके तैयार करती, और जब बाप कहता तो वही औलाद को ऊपर से ताने देती कि बचपन में तो हमें मारने के लिए तुम यहाँ छोड़ गए थे, इस वादी के अंदर जहाँ ना कोई पानी, न कोई आग उतारना, न कोई इंसान, न इंसान, हमें हमारी माँ को अब आए हो फिर दोबारा कत्ल करने के लिए। ख्वाब का बहाना करते हो, ख्वाब बुढ़ापे में सट गया, बुढ़ापा आ गया तुम्हारे ऊपर, हमको तुम कत्ल कर रहे, न जाने कैसे कैसे खुराफात। लेकिन नहीं, ये नजरों की करामत थी या मकतब की करामत थी। सिखाए जिसने इस्माइल को आदाब जिसने ये सिखाए, अपने बाप के आदाब सिखलाए। जब बाप ने कहा तो बेटे ने गर्दन झुकाई और कहा अब्बा, वो काम कर गुजरिए जिसका हुक्म अल्लाह ने आपको दिया है, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में वाक़या आपको पता है। चुनांचे अल्लाह ने फरमाया फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। जब बाप बेटा कुर्बानी के लिए तैयार हो गए, दोनों बाप बेटे कुर्बानी, और बाप ने बेटे को कुर्बानी करने के लिए चेहरे के बल लिटाया, अल्लाह अकबर, चेहरा जमीन के ऊपर रखा, चेहरे के बल लिटाया। तो इरशाद बारी सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता, अल्लाह ने आवाज दिया इब्राहीम, जो ख्वाब तुमने देखा था, क़द सद्दक़्ता रुया, उस ख्वाब को तूने सच कर दिखाया है। वफ़दैना अल्लाह वइन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम एहसान करने वालों को इसी तरह से बदला देते हैं। इन हाज़ा लहुल बलागुल मुबीन, ये तो बड़ी ही खुली हुई आजमाइश थी। ये आजमाइश थी, इस आजमाइश, बहुत सारी आजमाइशों में भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आजमाइश में भी पूरे उतरे। अल्लाह फरमाता है वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। इस आजमाइश में जब वो मुकम्मल उतर गए तो इस्माइल की गर्दन के नीचे हमने जन्नत से, अल्लाह अकबर, एक जानवर ला करके रख दिया। इस्माइल की गर्दन को बचाया। गर्दन किसकी कटी? उस जानवर की कटी जिसे इब्राहिम ने ज़ब्ह किया, ये समझते हुए कि मैं अपनी औलाद को ज़ब्ह कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, और इस तरह हमने ये सुन्नत को दूसरों के ऊपर जरूरी करार दिया। सलामुन अला इब्राहिम, ऐ इब्राहिम तेरे ऊपर सलाम हो, अल्लाह उनके ऊपर सलाम भेज रहा है। कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम एहसान करने वालों को इसी तरह से बदला देते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये कहना बहुत आसान है कि छुरी लेकर पैर हाथ को बांधकर और बेटे को
چہرے کے بل لٹا کر ایک بات ذبح کرنے خواب کی بنیاد پر جا رہا ہے، خواب کی بنیاد پر صرف اس بات پر کہ اللہ نے وہ خواب دکھلایا، لیکن نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اللہ کو آزمائش مطلوب تھی حضرت ابراہیم، اس آزمائش میں بھی پکے اترے تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے قیامت کی صبح تک ابراہیم کی سنت کو اس جانور کے بدلے میں تمام لوگوں کے اوپر ضروری قرار دیا، کرو اب یہ قربانی کرو، قربانی تم کرو۔ اور یہی نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے ان خاص عبادت کی جگہوں کو بھی تمام لوگوں کے اوپر فرض قرار دیا۔ وہاں حاضری کو میدان عرفات میں گئے تو وہاں بھی حاضری ضروری، مینا کے اندر قربانی کی تو وہ بھی ضروری، رمی جمرہ کیا، جمرات کو کنکریاں ماری ابراہیم نے تو وہ بھی ضروری، صفا اور مروہ پر سعی کری تو وہ بھی ضروری قرار دی گئی، فرض اور واجب قرار دی گئی، رکن حج اور عمرہ قرار دے دیا گیا۔ تو یہ امت مسلمہ کے لیے قربانی کو بھی قربانی کے لیے جو صاحب استطاعت ہیں ان کے لیے اس کو واجب قرار دیا گیا جو صاحب استطاعت ہیں۔ چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کے پوری امت کے مسلمان ہر خطے اور میں اسی حکم پر عمل کرتے ہیں اور قربانی کو اسلام کا شعار سمجھتے ہیں۔ اسلام کا یہ شعار سورہ حج آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت نے ارشاد والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ، یہ اونٹ، یہ جانور، یہ گائے، یہ بکرے جو ہم نے تمہارے لیے قربانی کے لیے بنائے ہیں، یہ در حقیقت اللہ کی عظمت کے شعائر ہیں، نشانیاں ہیں، نشان بنایا ہے اس شاعر کو، اس لیے میں تمہارے لیے اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ تو یہ ہمارے لیے قربانی میں خیر ہے اور بھلائی، اس لیے قرآن مجید کے مطابق اس قربانی کیا ہے، اس کی حقیقت کا ہم کو پتہ چلا، اللہ کا قرب حاصل کرنا جس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، زبان نہ ہو اور دلوں کے اندر کوئی وسوسہ اور کھٹک نہ ہو۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ نے یہ درس دیا کہ اپنے جان، اپنے مال، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ آپ جانور قربان کرتے ہیں، یہ گویا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ تو جانور دعا کر رہے ہیں، کسی بھی چیز کی قربانی اگر مطلوب ہوگی تو اللہ ہم کو قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری قربانی، میری نماز، میرا مرنا، میرا جینا، میری زندگی کے حلال گھڑیاں سب کچھ کس چیز کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے یہ ہونا چاہیے۔ عزیزان کرام، یہ ہے قربانی اور اس کی حقیقت۔ قربانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 جانوروں کا ذکر فرمایا ہے، اونٹ اور اونٹنی، گائے اور بیل، بھیڑ اور بھیڑی اور بکرا اور بکری عام طور پہ جو ہوتی ہے یہ آپ جانتے ہیں۔ تو یہ 4 قسم کی یہ جانور ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے قربانی کے لیے مقرر فرمائے ہیں، نر اور مادہ دونوں۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بے عیب ہونا چاہیے۔ عیب مطلب ٹوٹی بھی سیگے نہ ہو، لنگڑی نہ ہو، اتنی کمزور نہ ہو کہ اس کی ہڈیاں نظر آئیں، بیمار نہ ہو۔ یہ 4-5 قسم کے شرائط ہیں، تندرست ہو، صحت مند ہو۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تذبحوا الا مسنہ، جب بکری ذبح کرو، بکری جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں بکریاں، جب یہ کانٹ والی بکریاں ہوں، بکرے ہوں، یہ ذبح کرو۔ بھیڑوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا 6 مہینے کا اگر بھیڑ ہے، بھیڑی یا بھیڑا ہے 6 مہینے کا تو وہ اور سال بھر کا دیتا ہے تو اس کی بھی قربانی ہے، اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ لیکن جو بکری بکرے ہیں یہ دوسرے جو تیز جن کو ہمارے یہاں عربوں میں بولتے ہیں، اس کے لیے مسنہ یعنی دانتا ہونا، 2 دانت ہونے ضروری ہے۔ اور جس طرح سے جانوروں کا بے عیب ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے قربانی کرنے والے کے مال کا بھی حرام سے پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ لوگوں کی جیبیں کاٹ کر، جھوٹ بول کر، چوری کر کے، بدماشی کر کے، حفظ کر کے، خیانت کر کے، لوگوں کے اوپر ظلم کر کے جو پیسے کمائے اس سے 1 نہیں 2 نہیں 1000 نہیں لاکھ قربانیاں کر لو، اس کا کوئی فائدہ تم کو نہیں ہوگا، یاد رکھو۔ تو عیبوں کو ڈھونڈنے سے پہلے جانوروں کے اندر اپنے عیبوں کو بھی ڈھونڈو کہ تمہارا یہ مال، تمہارا یہ پیسہ کہیں حرام کا تو نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی نماز کے بعد، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قربانی کرنا ہے۔ نماز عید الاضحیٰ سے پہلے جو لوگ قربانی کرنے کے فتوے دیتے ہیں کہ دیہات ہے، گاؤں ہے، فجر بعد ہی کر لو، یہ سب حرام کام ہے، یہ سب کھانے پینے والوں کا کام ہے، یہ قربانی اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے قربانی کے لیے ضروری ہے، آداب ہے اس کے کہ ذبح کرنے سے پہلے اپنی چھریوں کو صاف کرنے، تیز کرنے، اور آپ کو پتا ہے پھر اس کو ذبح کرے، اس کے سامنے قربانی کے جانور کے سامنے اس کو نہ ذبح کرے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سے بہت سارے احکامات ہیں اس کے بہرحال یہ مختصر سے احکام تھے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھے ہیں، اور عید کی نماز انشاءاللہ تعالیٰ بلدیہ کیمپ کے اندر اسی
जैसे आमतौर पर पढ़ी जाती है इसी ग्राउंड के अंदर, आप हजरात को इत्तला दी जाती है कि इंशाअल्लाह ताला उसी में ईद की नमाज होगी, आप हजरात आए अपने साथ अपना अपना मुसल्ला भी लेके आए, और जिस तरह डिस्टेंस और फासले नमाजों में जरूरी है, ऐसे वहां भी फासले और डिस्टेंस रहेंगे इंशाअल्लाह तबारक ताला। वक्त पर हाजिर हूँ, वक्त का ऐलान कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जैसे यानी फजर के दिन निकलने से 10 मिनट, क्योंकि इसमें जल्दी करना ये अफजल है, सुन्नत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस्तिताअत रखता है, जो ताकत रखता है कुर्बानी करने की, उसके लिए यह है कि वो कुर्बानी करे। अगर ताकत रखने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं करता, फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, तो हमारे ईदगाह के करीब ना जाए। यानी ये ज़ज्र है, एक तरह से ज़ज्र है। वैसा सवा साइंस के रखे हुए कुर्बानी पेश करो अल्लाह ताला के दरबार में, अल्लाह ने दिया। बाद लोग इस्तिताअत के लिए जरूरी करार देते हैं कि साहब माली के निसाब होना है इतने, जैसे ज़कात के लिए जो शराइत हैं ऐसे ना, इसके लिए कोई शराइत नहीं है, इसके लिए कोई शराइत, ज़कात बात की कोई शराइत नहीं, माली के निसाब होना इसके लिए शर्त नहीं है। ताकत है अगर आपके पास, आप मखरूज नहीं है, आपके पास है पैसा तो आप कर लें। इसी तरह से गाय है, बैल है, इसके अंदर 7 हिस्से लगेंगे, 7 हिस्से लगेंगे। अगर ऊंट है तो उसके लिए 10 हिस्से हैं, उसके लिए 10 हिस्से हैं। इसी तरह से कुर्बानी जो है यौमुन नहर 10वीं तारीख को कुर्बानी, फिर अय्याम तशरीक 3 दिन, यानी 10, 11, 12, 13, यानी 4 दिन कुर्बानी करने के हैं। कितने दिन हैं हमारे मुल्कों के अंदर? मौलवी बताते हैं 3 दिन है। 10 और 11, 12, 1 को खत्म कर जाता है। बहुत सारी दीन की चीजें इन्होंने खत्म करी हैं, बहुत सारी दीन की चीजें इन्होंने गायब कर दी हैं, और जो नहीं है उन्हें भिड़ा दिया, उन्हें मिला दिया। तो अल्लाह इनके शर से उम्मत को महफूज रखे। बल्कि कितने दिन है? यौमुन नहर 1 10वीं तारीख, वो अय्याम तशरीक जिसको अल्लाह के नबी अय्याम तशरीक फरमा दिया। तशरीक कहते हैं गोश्त को सुखाना, गोश्त सुखाना। अरब में गोश्त को सुखाया जाता था तेज धूप के अंदर हज के बाद। तो बहरहाल तो इस तरह से यह है 4 दिन कुर्बानी है, आप 4 दिन कुर्बानी करें। इसी तरह से एक जानवर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जानवर खरीदते थे और अपने घर वालों की तरफ से करते थे। यानी जो घर का मालिक होता है वो जब कहता है अल्लाह ये मेरी तरफ से और मेरे आल औलाद की तरफ से कुर्बानी है, तो एक जानवर पूरे घर वालों के लिए काफी है, एक जानवर पूरे घर वालों के लिए काफी है इंशाअल्लाह तबारक तआला, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे। अलबत्ता यह है कि अगर अल्लाह ने आपको माल दिया, सदका खैरात करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप सदका और खैरात करें। बहुत लोग ये पूछते हैं कि जनाब अली मैयत की तरफ से कुर्बानी का क्या हुक्म है? हमारे बाप दादा परदादा, ठीक है, उसके लिए इख्तिलाफ है अहले इल्म का कि कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जब मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है 3 चीजों के अलावा, सदका जारिया और इल्म मुंतफ़िअ बिन्नास, या इल्म ऐसा छोड़ के जाए जिससे लोग फायदा उठाएं, और वलदुन सालिहुन यदऊ लह, यानी औलाद जो है छोड़ के जाए तो उससे जो है वो उसके लिए दुआ करे, तो उसके बाद और कोई चीज उस तक नहीं। उन्होंने कहा कि बेटे का सदका और खैरात बाप तक और वालिदैन तक पहुंचता है, जिसमें कोई हर्ज नहीं है बहरा, लेकिन उसके लिए यह है कि सबसे पहले वो अपनी तरफ से, अपने अहल वयाल की तरफ से एक जानवर करे। अगर मुर्दे की तरफ से, मैयत की तरफ से करना चाहता है तो वो एक जानवर अलग से लेकर उसे करे अपने बाप या दादा या नाना या नानी या किसी के नाम से, और उसे गरीबों में तकसीम कर दे। वो खुद न खाए बल्कि उसको गरीबों में तकसीम कर दे। इसी तरह से गोश्त के यह है मुर्दों के ताल्लुक से, तो इसी तरह से गोश्त वगैरह के तकसीम के ताल्लुक से भी सवाल होते हैं। तो तकसीम करना कोई वाजिब और फर्ज नहीं है, मुस्ताहब है। यह उस वक्त था जब लोग कम कुर्बानियां करते थे, तो उनके था कि 3 हिस्से बना लो, एक हिस्सा खुद रख लेगा, एक हिस्सा जो खाली को देगा गरीबों में तकसीम कर दो। अब पहले था, लेकिन आज भी अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपकी बस्ती में, आपके गांव में, आपके करिए में कोई कुर्बानी के लायक नहीं है बेचारे, आपके घर पे कुर्बानी है, तो आप ऐसा कर लो ताकि सबके घरों में गोश्त पहुंच जाए, तो कोई हर्ज नहीं इसमें। वरना अगर आपका कुंबा खुद ही इतना बड़ा है तो आप खुद ही अपने कुंबों को खिला लो, खा लो, कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं, इसमें कोई कबार नहीं है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये चंद बातें थी
اور اگر کوئی اور مسئلے مسائل ہوں گے تو میرا موبائل نمبر ہے، آپ حضرات اس کے اوپر فون کر کے اس کو واٹس ایپ کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو قبول فرمائے اور ہر چیز کی قربانی اللہ تعالیٰ ہمیں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مجيد رؤوف رحيم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال تعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأعظم وأعظم والله يعلم ما تصنعون.